Hello everybody, welcome at abhimanu IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years since its beginning in 1999. मैं डॉक्टर एच सिद्धू अभिमन्यु IS में इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस टीच करता हूँ. I have been mentoring the civil services aspirants for more than 15 years and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil services examination. So before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are conducting fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services examinations. That is for a preliminary and mains examination targeting 2023-24. These courses will be available through offline and online mode. We are providing 7 days free trial class also. If you want to join, you may click on the link given in the description. So now at Abhimanyu IS, we are running a series that is issues and analysis. So in this particular series, the very important topics from the perspective of the UPSC and state civil services examinations, the current topics are discussed, analyzed from the examination point of view. तो आज इस लेक्चर के लिए मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग. Is the monetary policy committee successful or not? तो ये टॉपिक का नेम है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो भारत के अंदर हमने की थी, तो आज उसको काफ़ी साल हो गए हैं. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज दैट whether the monetary policy committee has been successful or not in the context of the inflation targeting. So that is what we are going to discuss in today's lecture. So you know that inflation is such a phenomenon which relates with the continuous rise in the general price level in an economy, or otherwise we can say that inflation is such a phenomenon which is related with the continuous fall in the real value or the purchasing power of money in an economy. You know that neither very low rate of inflation nor very high rate of inflation are recommended. क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर होगा दैट विल नॉट बी गुड फॉर द इकोनॉमी. अगर बहुत लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा दैट विल नॉट बी गुड फॉर द इकोनॉमी. क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई रहता है तो देन द मॉनेटरी पॉलिसी authority must have to take the corrective actions, because अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हाई रहता है तो दैट मीन्स लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम हो जाती है एंड इन द वेक ऑफ दैट इट लीड्स टू फॉल इन डिमांड. और अगर डिमांड में फॉल आती है तो इन्वेस्टमेंट कम होती है. अगर इन्वेस्टमेंट में फॉल आता है या इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज नहीं होती तो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रुक जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट होती है. एंड moreover, in such a situation when the rate of inflation is very high, people avoid from depositing their savings in the banks. Instead, they prefer to invest their savings into the precious metals like gold, etc. So then obviously in that wake, the demand for gold will increase, and as far as India's case is concerned, so we have to increase the import of the gold also. So अगर gold की import बढ़ेगी तो डॉलर की प्राइस बढ़ेगी और इंडियन रूपी है जो that will weaken in front of the dollar. तो अगर इंडियन रूपी वीक होता है सो देन जो हम अदर इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ इंपोर्ट करते हैं जैसे क्रूड ऑयल है, so that also become dearer for us, and that will have a negative effect on the economy.
तो दिस इज़ द पॉइंट। एंड सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा लो होगा तो भी रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा इन्वेस्ट करने का। तो दैट इज़ वाई बोथ वेज, वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड वेरी लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बोथ वेज दीज आर हार्मफुल वी कैन से। एंड देयरफॉर जो मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी होती है तो इसका ये एम रहता है टू कीप द रेट ऑफ इन्फ्लेशन अंडर चेक। तो अब फिर जो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो उसके अंदर हमारे एक तो मल्टी टारगेटेड अप्रोच होती है, एक हमारी इन्फ्लेशन टारगेटिंग मींस सिंगल टारगेटिंग अप्रोच, दैट इज़ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो मल्टीपल टारगेटिंग में क्या रहता है कि टू कीप द इन्फ्लेशन अंडर चेक, टू इंश्योर द high rate of economic growth, to ensure the increase in employment, and to keep the exchange rate under check. And तो क्या रहता है फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी रहती है वो इन सभी चीज़ों के बीच में कंफ्यूज्ड रहती है, बिकॉज देर इज़ ए ट्रेड ऑफ बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देयर फोर वी कैन से समटाइम्स जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो फिर सक्सेसफुल नहीं रहती। दैट इज़ वाई फिर इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो सेकेंड अल्टरनेटिव आता है, इसके अंदर क्या है कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी होती है, उसका जो मेन फोकस रहता है दैट इज़ ऑन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन शुड बी, you can say rate of inflation should be maintained at this particular point, or within a prescribed range, that means the higher limit and the upper limit, so within that also। तो ऐसा रहता है। सो ये माना जाता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज ए बेटर अप्रोच देन द मल्टीपल टारगेटिंग अप्रोच। तो चलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है। तो पहली बात यहाँ क्या लिखा है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द राइजिंग प्राइसेस इन एन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक मेथड है। ए सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ टू अल्टीमेट गोल्स। सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके दो गोल्स रहते हैं इंपॉर्टेंट। वन इज़ टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, सेकंड इज़ टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ। Once the inflation is set, inflation target is set, the central bank exercises its monetary policy tools to keep the inflation fixed around the targeted figure। तो जब एक बार इन्फ्लेशन टारगेट हम सेट कर लेते हैं उसके बाद जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को एक्सरसाइज करती है एंड इट मेक्स एवरी पॉसिबल एफर्ट टू कीप द rate of inflation under check according to the target। So this is the point there। and now the point is that कि इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो अर्जित पटेल कमेटी एक वुमेन ने बनाई थी। एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट कमेटी जो हमने जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उस उस रजीम को स्टार्ट किया है वी कैन से। So according to that committee, under inflation targeting framework, RBI to choose CPI combined, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड के बेसिस के ऊपर हमने इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आजकल जो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है दैट इज़ 4% विद ±2%। तो ये जो 4% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ये कौन सा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वेदर इट इज़ WPI इन्फ्लेशन और इट इज़ CPI इन्फ्लेशन। अगर ये CPI इन्फ्लेशन है उसमें भी दो तीन किस्म की है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए, अर्बन एंड रूरल के लिए सेपरेट, एंड देन अर्बन एंड रूरल कंबाइंड, वो कौन सा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो वी विल कंसर्न हेयर अबाउट द combined CPI combined rate of inflation, so that is treated as a nominal anchor and inflation target should be 4% with a band of ±2%। तो ये है राइट। उसके बाद फिर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है। तो देर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी प्रोवाइडेड एन
you can say inflation target, and accordingly the Reserve Bank of India will determine its monetary policy, that is the determination of the repo rate, reverse repo rate, bank rate, CRR, SLR, etc. Okay, to keep the inflation you can say at the targeted level. So this is what is there we can say. Okay, so ये जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग है इंडिया के अंदर, तो हमने जो 4% इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है विद प्लस माइनस 2%, मीन्स 2% ऊपर की तरफ जा सकता है एंड 2% नीचे की तरफ भी जा सकता है. दैट मीन्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया okay is mandated to keep the rate of inflation within a range of 2% to 6%. okay? तो ये जो टारगेट दिया जाता है ये 5 इयर्स के लिए होता है हमारे कंट्री के अंदर. जैसे पहले टारगेट था 2016 से 2021 तक हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट था दैट वाज 4% विद प्लस माइनस 2%, एंड 2021 से लेकर के इसको मार्च 31 2026 तक फिर इंक्रीज कर दिया गया है. the targeted figure is same 4% plus minus 2%. okay, so that means हमारा जो पहला एक पीरियड था दैट वाज 2026 to 2021 4% इन्फ्लेशन टारगेट विद प्लस माइनस 2%. सो अब 2021 से हमने 2026 तक हमने फिर इसको यू कैन से फर्दर इंक्रीज किया है. okay, and it is the we have kept it same, सिर्फ हमने पीरियड एक्सटेंड किया है. रेट ऑफ इन्फ्लेशन या हमारा जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है दैट इज द सेम. तो दिस इज द पॉइंट देयर. अब हम इसकी एवेल्युएशन करते हैं क्योंकि 2016 से लेकर के आज तक काफ़ी साल हो गए हैं, तो दैट इज़ वाई इसकी एवेल्युएशन करनी बनती है कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल रही है, कितनी नहीं सक्सेसफुल रही इसमें. ओके, तो आप लोगों का सीधा क्वेश्चन ये रहेगा क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन है जो दैट इज़ ऑन द हायर साइड, सो दैट इज़ वाई आपका क्वेश्चन तो यही रहेगा, आपका आंसर तो यही रहेगा इस क्वेश्चन का कि नहीं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो फेल हो गई है, इट इज़ नॉट सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बट इट इज़ नॉट सो. ओके, yes, I cannot deny from this fact that today the rate of inflation in Indian economy is higher than the targeted rate. Okay, there are certain reasons. One reason is the rise in the oil prices in the international market. Second reason is the war which is between Ukraine and Russia, and the third reason that is the क्लाइमेटिक फैक्टर आल्सो. वी नो कि इस साल मार्च के मंथ में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था, जो गर्मी थी वो बढ़ गई थी, एंड उसके चलते हुए हमारी जो वीट की क्रॉप थी जो दैट गॉट अफेक्टेड, एंड दैट इज़ वाई द प्रोडक्शन ऑफ द वीट कम्स डाउन, एंड दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड द इन्फ्लेशन इन द कंट्री. तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर आल्सो देयर. बट अगर हम 2016 से लेकर के अब तक का अगर हम देखते हैं तो वी कैन से दैट हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है या जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है दैट रिमेन्ड सक्सेसफुल इन इंडिया, बिकॉज 2016 से लेकर के 2021 तक जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था दैट रिमेन्ड अंडर चेक. तो वो कंट्रोल्ड रहा जैसे लिखा है. बट ओवरऑल सिंस द बिगिनिंग ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हमारे कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन टारगेटिंग कब शुरू हुई थी 2016 में. तो ये एक प्रिलिमिनरी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है. सिंस द बिगिनिंग ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन 2016 द एवरेज इन्फ्लेशन मेजर्ड थ्रू द जीडीपी डिफ्लेटर हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली. तो अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू एवरेज इन्फ्लेशन मेज़र करके देखते हैं तो जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है दैट हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली. सो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, दिस इज कंसिडर्ड एज ए गुड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन. व्हाई? बिकॉज it considers all the commodities which are produced in the country,
ओके, सो WPI में, CPI में हम एक सेलेक्टिव कमोडिटीज़ की बास्केट लेते हैं, लेकिन जब हम GDP डिफ्लेटर यूज़ करके इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं तो हम सभी कमोडिटीज़ लेते हैं। सो GDP डिफ्लेटर क्या है? वी कैन से द दैट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, VP में लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एट करंट प्राइसेस and value of production at the base year prices, or we can say at the constant prices. तो ये है राइट। लेट सपोज आज हमने 100 क्विंटल प्रोडक्शन की है वीट की, एंड जो आज का जो रेट है दैट इज 2000 पर क्विंटल। सो एट द करंट प्राइसेस, एट द करंट मार्केट प्राइसेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन? दैट इज 2 लाख। ओके, और अगर हम इसी सेम 100 क्विंटल वीट की हमारा यू कैन से किसी कांस्टेंट प्राइस के बेसिस के साथ मेजर करते हैं, लेट्स सपोज बेस ईयर की प्राइस के साथ, लेट्स सपोज एट दैट टाइम द प्राइस वाज 1500 पर क्विंटल। सो व्हाट इज दैट? 1,50,000 की प्रोडक्शन थी। ओके, सो दैट मीन्स 2 लाख एंड डिवाइडेड बाय 1,50,000 and multiply by 100, this will be the rate of inflation over here. So that is 4t. Okay, so that becomes a 133 1/3%। इसमें से हम माइनस कर देंगे 100, so that will become 33.33%। so this is the rate of inflation in the country. So this is how the GDP deflator measures the rate of inflation. तो यहाँ हम क्या कर रहे थे कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन रेट जब हम GDP डिफ्लेटर को लेकर के मेज़र करते हैं तो इन्फ्लेशन रेट में फॉल आया है। द एवरेज इन्फ्लेशन रेट विच वाज 5.69% ड्यूरिंग द 5 years इन द प्री इन्फ्लेशन टारगेटिंग पीरियड डिक्लाइंड टू 3.47%। तो कहते हैं जब हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्टार्ट हुई है 2016 में, तो 2016 के अगर हम पहले वाले 5 years लेते हैं तो एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज 5.69% इन द कंट्री, और अगर हम बाद वाले 5 years लेते हैं अप टू 2021, तो एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज़ कम डाउन टू 3.4%। दैट मीन्स inflation target has worked well in the control of inflation in our country. So this is the point, and this fall is the highest among both inflation targeting countries as well as that didn't adopt it. तो अगर हम इंडिया के अंदर ये जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर फॉल देखते हैं, सो ये हाईएस्ट फॉल है जो इंडिया ने अचीव किया है among the inflation targeting countries as well as among those countries which have not adopted the inflation targeting yet. So we can say that the fall in the rate of inflation after this 5.69% से 3.44% तक हुआ है. So that is a significant fall. That is why we can say that it is successful. Though softening of international commodity prices and domestic food prices also contributed to besides moderation in the MSP. इसके पीछे कहते हैं थोड़ा बहुत और भी कारण है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस थी वो थोड़ी मॉडरेट रही, वो थोड़ी डाउन हुई, राइट, कंट्रोल रहा उन प्राइसेस के ऊपर, एंड थोड़ा गवर्नमेंट ने MSP में भी इंक्रीज किया है. सो दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस, बट फिर भी ओवरऑल हम कह सकते हैं, क्योंकि वैसा तो पहले भी चल रहा था, तो फिर भी ओवरऑल वी कैन से दैट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिमेन्ड अंडर चेक इन आवर कंट्री. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ड्यूरिंग 2016-2021, तो देखो हमने इसमें दो चीज़ें देखते हैं. तो बेसिकली हम 3 पॉइंट्स पे कह सकते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी है और अप्रोच है दैट रिमेन्ड सक्सेसफुल. वन इज कंट्रोल इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन. एक तो हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन को देख करके हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन रिमेन्ड अंडर चेक. एंड द सेकंड थिंग वी कैन से दैट इज द इन्फ्लेशन वोलेटिलिटी.
एक हम इसको देख करके भी हम बात करेंगे, इन्फ्लेशन वोलेटिलिटी। तो एज फार एज द इन्फ्लेशन वोलेटिलिटी इज कंसर्न्ड, ये भी हम बात करते हैं ये क्या है। एंड तीसरी बात करते हैं हम कि आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, so there is the transparency in the monetary policy framework which we are seeing in our country. So these are the 3 points on the basis of we are going to discuss that whether the inflation targeting mechanism is successful or not in our country. तो पहला हमने कर लिया है कि 2016 में जब हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अडॉप्ट किया, उससे पहले 5 सालों में जो हमारा इन्फ्लेशन रेट था दैट वाज 5 you can say 69, and 2016 से 21 तक it has fallen down to 3.47%. so that means it is a successful, अगर हम फर्स्ट पॉइंट को लेकर के बात करते हैं। और अगर हम इस सेकंड पॉइंट को लेकर के बात करते हैं, इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी। इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी मीन्स द अप्स एंड डाउन्स इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक, तो ये वैसा भी हो सकता है और ये वैसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है और ये वैसा भी हो सकता है, वैसा भी। so this is known as the volatility in the rate of inflation. usually volatility हम कैसे मेजर करते हैं, हम जो डिफरेंट क्वार्टर्स का जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, लेट सपोज फर्स्ट क्वार्टर का जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है दैट इज 10%, जो सेकेंड क्वार्टर का रेट ऑफ इन्फ्लेशन है लेट सपोज दैट इज 8%, जो थर्ड क्वार्टर का रेट ऑफ इन्फ्लेशन है दैट इज 12%, जो फोर्थ क्वार्टर का है दैट इज 6%। तो फिर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर के एक स्टेटिस्टिकल मेजर के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं, तो इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी। बट जो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी मीन्स what is the rate of fluctuation in the rate of inflation. so this is the measure of that. okay, तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर जब से हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम स्टार्ट किया है, तब से जो इंडिया के अंदर देयर इज ए सब्सटेंशियल फॉल इन इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी। तो जितनी वॉलेटिलिटी कम होगी उतनी बेटर मानी जाती है। तो इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी में भी फॉल आया है। The average inflation volatility which was 7.93% 5 years before inflation means 2016 में जब हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम अडॉप्ट किया है, उसके पहले 5 सालों में इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी वाज दिस मच 7.93%, बट उसके बाद वाले जो 5 years हैं इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी in those years has come down to 0.89%. so this is a very big success of the monetary policy framework और the inflation targeting की एक big success है। even the real GDP did not decline. usually हम कहते हैं कि inflation and इसके अंदर है जो you can say एक trade off है। अगर हम inflation को reduce करने के लिए थोड़ी टाइटर या नैरोअर मॉनेटरी पॉलिसी को ऑप्ट करते हैं तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो हमारा फॉल होता है। बट यहाँ हम क्या देखते हैं कि इवन द जीडीपी ग्रोथ रेट ओके हैज़ नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो 2011-15 में हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना रहा 6.50, बट 2016-19 में जीडीपी ग्रोथ में बल्कि थोड़ा इंक्रीज हुआ है, डाउन नहीं हुआ। सो दैट मीन्स वी कैन से the 2 points we have discussed, one is rate of inflation which has come down and the second is the inflation volatility which has been reduced, and in and in the wake of that the rate of increase in GDP or the GDP growth rate has not been affected by that. So this is the second point, and the third point which is there, that is a monetary policy transparency in India has improved. ये पहली बात तो ये है कि जो अब जो मॉनेटरी पॉलिसी की फॉर्मेशन होती है वो पहले की तरह नहीं, RBI is not the sole authority for determining the monetary policy. there is a monetary policy committee जो इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, एंड
वो 6 मेंबर कमेटी है, 3 मेंबर आरबीआई के हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से हैं, उनकी क्वार्टरली मीटिंग्स रहती हैं और उन मीटिंग्स के अंदर जो भी उनके डिसीजंस होते हैं सभी मेंबर्स के, तो उनकी जो minute ऑफ द मीटिंग दैट इज़ आल्सो पब्लिश्ड विद इन 2 वीक्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। सो एक ट्रांसपेरेंसी आई है उस तरीके से भी। और दूसरे तरीके से एक और भी चीज़ है कि पहले जो इन्वेस्टर होते थे या कुछ हाउस होल्ड होते थे, उनके लिए इन्फ्लेशन की जो फोरकास्टिंग करने का तरीका क्या होता था कि वो पास्ट ट्रेंड देखते थे, व्हाट इज़ द पास्ट ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन रेट इन द इकोनॉमी, वेदर इट इज़ ग्रोइंग, वेदर इट इज़ फॉलिंग, वेदर इट इज़ कांस्टेंट। तो वो ये देख के डिटरमिन करते थे। तो अब क्या है, इन्फ्लेशन टारगेट है। जैसे पता है सभी को कि इन्फ्लेशन विल बी kept within the range of 2 to 6%. So that is why they need not to go into the past to see that what is going to be the you can say projected rate of inflation in the days to come. So this is important point here. जैसे लिखा है inflation expenditure survey of households. Okay, shows that inflation expectation has been forward looking in the post inflation targeting period in। तो पहले बैकवर्ड लुकिंग थी, अब फॉरवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड लुकिंग यही थी कि हम पास्ट रेट देखते थे, उसके बेसिस के ऊपर हम फोरकास्ट करते थे। अब फॉरवर्ड लुकिंग है, वी नो दैट दिस इज द टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इन फ्यूचर every you can say effort will be made by the monetary policy authority of the country to keep the inflation within the prescribed range. So that is why it has become forward looking now. Inflation expectations now do not depend much on the past information. Households are increasingly using current and future information to form inflation expectations. तो जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं वो आज करंट या फ्यूचर जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको यूज़ करते हैं। This implies that transparency in monetary policy is helping to reduce inflation expectations. तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी आई है, जो हमने रेट डिस्क्लोज कर दिया है पहले से ही कि ये रेट रहेगा, तो उससे क्या है, जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं जो उनमें रिड्यूस आई है, में थोड़ा फॉल आया है। और इससे क्या होता है, जो वो स्पेकुलेशन रहती है मार्केट में उसमें भी फॉल आता है। So that is the point there. Now the next point is that the next important point is should we continue with it? Yes, because inflation targeting has been a successful story. RBI has rightly earned goodwill in this respect. Therefore, it is better for India to keep continue with the flexible inflation targeting regime. So that is why it is in the interest of India to keep continue with the flexible inflation targeting regime. So this is all about today's topic. I hope this is clear to you. And अब आप इस चीज़ को आंसर कर पाओगे कि whether the monetary policy committee has been successful in controlling the inflation in India or not, right? So this is all. So thank you very much. All the best. We'll see you with a new topic again in the next case. Thank you.